Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Shahid Skandar Mirza. In previous lesson, we learned about sentence structure, and in this lesson, we will discuss about subject and its types. So let's start. A subject is who or what a sentence is about, and it tells who or what does the action. To explain this, we take some examples. Number one, boys play cricket. What is the action in this subject sentence? Play. And who is doing the action? Boys. So boys is subject because sentence is about the boys and boys are doing the action. इस फिक्रे में एक्शन प्ले है और एक्शन कौन कर रहा है? बॉयज़. और ये सेंटेंस भी बॉयज़ के बारे में है, इसलिए बॉयज़ सब्जेक्ट होगा. इन एग्जाम्पल 2, अहमद सिंग्स अ सॉन्ग. What is the action in this sentence? Sings. And who is doing the action? Ahmed. So Ahmed is subject in this sentence because it is doing the action and the sentence is about the Ahmed as well. तो इस फिक्रे में एक्शन क्या है? सिंग्स. और कौन एक्शन कर रहा है? अहमद. तो अहमद हमारा सब्जेक्ट होगा क्योंकि अहमद के बारे में ये फिक्रा है और अहमद ही एक्शन कर रहा है. इन एग्जाम्पल 3, गर्ल्स ड्रिंक वाटर. व्हाट इज द एक्शन इन दिस सेंटेंस? ड्रिंक. एंड हु इज डूइंग द एक्शन? गर्ल्स. सो गर्ल्स इज अवर सब्जेक्ट बिकॉज सेंटेंस इज अबाउट गर्ल्स एंड एक्शन which is being performed is doing girls are doing the action. इस फिक्रे में एक्शन ड्रिंक है और कौन एक्शन कर रहा है? गर्ल्स कर रही हैं और फिक्रा भी गर्ल्स के बारे में, इसलिए सब्जेक्ट जो इसके अंदर होगा वो गर्ल्स होंगी. तो आपने देखा कि हमने इस लेसन के अंदर सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी और उसकी मिसालें देखी. 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट. We will consider simple subject first. A simple subject is the main word in a subject. It is one word. To explain it, we will take some examples. Example number 1. One large bus passed over car. What is the action in this sentence? Passed. And who is doing the action? Bus. So bus is our simple subject in this sentence because it is one word and it is the main word in the subject. तो इस फिक्रे में एक्शन पास्ट है. एक्शन कौन कर रहा है? बस. बस सिंपल सब्जेक्ट है क्योंकि ये मेन वर्ड है और वन वर्ड है सब्जेक्ट के अंदर. इन एग्जाम्पल 2, द स्मॉल डक्स स्विम इन द लेक. व्हाट इज द एक्शन इन दिस सेंटेंस? Swim. And who is doing the action? Ducks. So ducks is simple subject because it is main word and one word in the subject. इस फिक्रे में एक्शन swim है. कौन एक्शन कर रहा है? ducks. तो ducks सिंपल सब्जेक्ट होगा क्योंकि ये वन वर्ड है और मेन वर्ड है सब्जेक्ट में. इन एग्जाम्पल 3, a scary dog was barking at the beggar. Again, what is the action in this sentence? Barking. And who is doing the action? Dog. So dog is simple subject because it is one word and main word in the subject. इस फिक्रे में एक्शन बार्किंग है और एक्शन कौन कर रहा है? डॉग. लिहाजा डॉग हमारा सिंपल सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक मेन वर्ड और वन वर्ड है सेंटेंस के अंदर. Complete subject is all words in the subject. This includes subject and the words that modify or describe the subject. To explain it, we will take the same examples as we have taken in the case of simple subject.
Example number 1. One large bus passed over car. What is the action in this? Past, and who is doing the action? One large bus. So one large bus is our complete subject in this sentence because it has all the words which are present in this subject. Whereas bus is a single word and it will be the simple subject, as we have discussed previous in the case of simple subject. इस फिक्रे में एक्शन क्या है? पास्ट है और कौन एक्शन कर रहा है? वन लार्ज बस. तो वन लार्ज बस हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर तमाम अल्फाज मौजूद हैं जो कि सब्जेक्ट में है. इन एग्जाम्पल 2, द स्मॉल डक्स स्विम इन द लेक. इस फिक्रे के अंदर जो एक्शन है वो स्विम है और कौन एक्शन कर रहा है? डक्स. द एक्शन इज स्विम एंड हु इज डूइंग द एक्शन? द स्मॉल डक्स. द स्मॉल डक्स इज complete subject because it has all the words including in the subject. Example 3, a scary dog was barking at the beggar. Again in this sentence, what is the action? Barking, and who is doing the action? A scary dog. So scary dog is our complete subject because it includes all the words in the subject. तो इस फिक्रे में एक्शन क्या हो रहा है? बार्किंग है और कौन एक्शन कर रहा है? स्केरी डॉग. तो स्केरी डॉग हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट होगा क्योंकि इसमें तमाम अल्फाज शामिल हैं जो कि सब्जेक्ट में मौजूद हैं. स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हमने सब्जेक्ट और एग्ज़ाम के बारे में पढ़ा और हमने सब्जेक्ट की डेफिनेशन को देखा. एग्जाम्पल की मदद से हमने इसे एक्सप्लेन किया. इसके बाद इसी तरह हमने देखा कि सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है और इसके कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, उनकी मसालों को देखा. मुझे उम्मीद है कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 5-5, 6-6 सेंटेंस लेके, तो उनमें आप ये चीज़ें तलाश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. क्योंकि अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनके नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा. इस वीडियो को बार बार आप रिवाइंड करें, पॉज करें और इस पे नोट्स लेके और फिर इसके मुताबिक आप जो है वो प्रैक्टिस करें. पिछला जो हमने पिछले वीडियो में जो सेंटेंस के बारे में लेसन दिया गया वो भी ज़रूर देखें क्योंकि ये जो वीडियो लेसन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपस में जुड़े हुए हैं और तरतीब से चलें. ये ग्रामर की बुनियादी चीज़ें हैं जो आमतौर पर नज़रअंदाज की जाती हैं और ये अगर आप अच्छी तरह सीख लेंगे तो आपको टेंसेस सीखने में और दूसरी जो ग्रामर की चीज़ें हैं उनमें बड़ी आसानी होगी. तो मेरी कोशिश है, इसीलिए मैंने इनसे इब्तदा की है कि आप लोग जो है इन पे तवज्जो दें और इनकी मदद से आप जो है वो इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरह सीख सकें. तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और दूसरे तलब इल्मों के साथ, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आप अपनी इसकी प्रैक्टिस पर तवज्जो दें. तो अगले लेसन में हम वर्ब और उसकी अक़साम के बारे में पढ़ेंगे. तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़.